बनाने के लिए ना Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. All right, class. So we have been doing the chapter resources and development. This is what we are doing here in your class. Good evening, everyone. Good evening. Till now, what we have read about is that there are different. No, it's not completed, Akhil, yet. Today we'll try to complete it because there are a lot of things which are to be discussed in this chapter. So this chapter is taking a bit of time. वैसे भी geography के chapters में always it takes time. So what happens in resources and development now? Resources and development is a chapter that deals with the resources which are available on our Earth, planet Earth, and mostly we are concerned about the resources which are found in India. अभी तक हमने पढ़ा that what are the different types of resources and how are they classified. Then we read about how land as a resource is utilized in different ways. I think you all might be remembering your previous class that how the land as a resource was being utilized in different ways, like it was occupied by forest, then there was fallow land, there was land put to non-agricultural uses, current fallow land, wastelands. So we have seen, and we also compared how in the 70s, how in the 60s, 60, 61, how the land was utilized in India, and what is the present status. And there we I think you will be able to answer now that the change which has taken place in the land pattern of India, that change will definitely whether that change has a positive effect or a negative effect. Like the forest land has increased. If the forest land has increased now, is it positive or negative for will it have a positive or negative effect? Increase in forest land, it will have a positive effect. Very good, Yogita. And if we say that the pastures have been decreased, Ma'am, positive. it is positive or negative? Ma'am, negative. Negative. It is negative. Pastures kam ho jana matlab grazing for it, there is less land available for grazing, so that is negative. If we say that the wasteland has been reduced, is it positive or negative?
It is positive. Good. So it is positive. The Positive. reduction. See, okay. Now, एक चीज I would like to mention here one very important thing, that as per the National Forest Policy of 1952, at least 33% of land area of a given region should be covered with forest. ठीक है? As per National Policy of Forest 1952, हमारा जो इंडिया में एटलीस्ट 33% ऑफ फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए. ठीक है? ओवरऑल भी और स्टेट वाइज भी 33% ईच. तो अगर 33% से कम है हमारा फॉरेस्ट एरिया, दैट मींस कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इट इज नॉट सेफ. लेकिन हमने अभी लास्ट वीक पढ़ा कि हाउ मच ऑफ आवर एरिया इज अंडर फॉरेस्ट. डू यू रिमेंबर दैट? How much of our land area is under forest? Do you remember that? Not 18. It was 18% in 1960s, but abhi presently kitna ho gaya hai? 22 to 23. Yes, Vansh. It is 22 to 23%, but still it has not reached 33%. Right? तो अभी भी 33% नहीं है. इसका मतलब हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है. ठीक है? हमारा नेचुरल फॉरेस्ट का 33% कवर होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे you all know what are the benefits of forest. It cleans, it is a natural purifier. The forests are a natural purifier. Air purifiers जो अपने गाड़ियों में और अपने घरों में लगाते हैं. फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, सी आजकल जो एयर प्यूरिफायर चले हुए हैं कि आप घरों में लगाओ और प्यूरिफाई होगी, उससे अच्छा है कि आप इंडोर प्लांट्स लगा लेके आए. उनसे अच्छा एक तो नेचुरल होंगे और दूसरा आपके घर के अंदर की हवा प्यूरिफाई वो करेंगे. ठीक है? तो अगर वो घर की हवा प्यूरिफाई कर सकते हैं, पूरे प्लैनेट की हवा प्यूरिफाई करने के लिए वी शुड हैव एटलीस्ट 33% ऑफ लैंड कवर्ड इन फॉरेस्ट. लेकिन हमारा 33% एरिया कवर्ड नहीं है फॉरेस्ट से. इसका मतलब कि हमारी जो एयर है इट इज नॉट सुटेबल फॉर ब्रीथिंग. ठीक है? क्योंकि हमारा यस इट इज पोल्यूटेड. ठीक है? और दूसरा, फॉरेस्ट की वजह से ट्रांसपिरेशन होती है, जिसकी वजह से बारिश आती है, क्लाइमेट कूल रहता है, प्लेजेंट रहता है. वो सारी चीजें भी हमारे बिकॉज फॉरेस्ट कवर कम है उसके कारण हो रही है. ठीक है? जो वार्मिंग हो रही है वो भी इट इज ऑल्सो डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वार्मिंग. राइट? तो नो, फॉरेस्ट डोंट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट. हम लोग फॉरेस्ट के इम्पैक्ट की बात करें तो फॉरेस्ट ऑलवेज हैव ट्रीज. ट्रीज का हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट कभी भी नहीं होगा ट्रीज का. ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी रेड. नाउ we have been yes, it provides shelter, brings out rain and irrigation. Good points made there. Now we have already done so much of reading about land. Now we have to read about we have already read about how land has been utilized in our country. ठीक है? हमने ये दो चार्ट्स पढ़े थे और इनको कंपेयर किया था कि पहले हमारा लैंड पैटर्न कैसा था, लैंड यूज पैटर्न, और आज हमारा लैंड यूज पैटर्न कैसे है. इसके अलावा आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द लैंड कंजर्वेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन. लैंड डिग्रेड कैसे होता है? बिफोर वी स्टार्ट अप दिस टॉपिक, can any one of you define what do you mean by degradation of land? Can any one of you define what is land degradation? And degradation. Removal of top layer of soil. Removal of top layer of soil is soil erosion actually, and it is one of the causes of land degradation. Yes, polluting soil. Exploitation of land, pollution of land, very good. Depletion of quality of land, good, very good, Mahir. So these all are what is land degradation. We can say that land degradation is, I'm waiting for some more answers.
ओके, सो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? Yes, nutrient decrease in fertility, loss of quality, very good. So you all are able to define what land degradation is. Land degradation is that the land which is available to us is not being utilized property, and because of indiscriminate use of land, the land has now become unfit for cultivation. The land has become unfit for cultivation, right? So this is what land degradation is. Land की nutrient quality कम हो गई है, fertility कम हो गई है. There can be many reasons for this, and what you are saying is कि removal of top layer or soil erosion is one of the reason of land degradation. Land degradation के बहुत reasons हैं, ठीक है? जितनी भी लैंड डिग्रेड, आपको क्या लगता है? गिव मी वन आंसर नाउ. डू यू थिंक लैंड इज डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ natural causes, or is it human causes? Land can be depleted through natural as well as human causes, right? लेकिन human causes ज़्यादा, yes, mostly, yes, Sabita is mentioned very nicely here that mostly human causes. Human causes have led, or we can say the human causes have accelerated land degradation, right? हम लोगों ने accelerate कर दिया है, ठीक है? कैसे accelerate कर दिया? What are the reasons of land degradation through or which human activities have led to land degradation? Overgrazing, overuse of chemicals in the land, yes. Mining, very good, mining is one. Deforestation, very good. Mining, deforestation, intensive cultivation, very well mentioned there. Intensive cultivation होता है बहुत ज्यादा cultivate करना land को, उससे large part of land being eaten by, being grazed by animals. Yes, overgrazing कह सकते हैं. Overgrazing क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास natural pastures जो है वो कम है, तो एक land पे excess use of fertilizer, yes, very good. So you have all the reasons of land degradation with you now, ठीक है? Land can be degraded through deforestation, through overgrazing. Land can be degraded through mining is a very major reason. जितने भी हमारा plateau region है, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये जो areas हैं, यहाँ पर land क्यों degrade होते हैं? वहां पर क्या करते हैं? mining के लिए कितनी जगह को खोदते हैं. खोदने के बाद उनको वैसे ही, जब माइनिंग का काम पूरा हो जाता है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि वो जगह किसी काम नहीं आती है, ना वो कल्टीवेशन की काम आती है, ना वो शेल्टर, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि माइनिंग से खोद के पूरे लैंड को डिग्रेड कर दिया गया है, ठीक है? ओवर इरिगेशन से क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी देने से आप सोचते होंगे कि लैंड कैसे डिग्रेड हो जाता है. ओवर इरिगेशन से जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के, वो वॉश अवे हो जाते हैं. दे आर वॉश्ड अवे विद वाटर, ठीक है? दूसरा, जब हम ओवर इरिगेट करते हैं, उसके बाद जब वो पानी सूखता है, ठीक है, इवेपोरेट होता है, पीछे बहुत सारे सॉल्ट और एल्कलीन मैटर छोड़ जाता है, ठीक? ये सारे न्यूक्लियर टेस्टिंग ऑन लैंड. ओके, तो बहुत सारे जब ओवर इरिगेशन के बाद जब पानी इवेपोरेट होता है तो बहुत सारे वहां पर छोड़ जाता है salts or alkalis. Now stop writing, बच्चे, don't write now, just listen to me. Excess of sunlight can never be a cause of land degradation. अखिल, excess sunlight से क्या होगा? कुछ नहीं होगा. sunlight थोड़ी land degrade करती है, human activities land degrade करते हैं, ठीक है? क्रैक्स, बच्चे, वो तो नेचुरल, सी, ठीक है, नेचुरल कॉजेस बहुत है लैंड डिग्रेडेशन के. आप सोचते होंगे फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स होती है, उससे लैंड डिग्रेड होता है, सॉइल इरोजन होगा जब नेचुरली, तो लैंड डिग्रेड होगा. लेकिन ये सारे नेचुरल प्रोसेस से लैंड डिग्रेड होता है, और फिर क्या कहते हैं उसको, फर्टिलाइज भी हो जाता है. नेचुरल न्यूट्रिएंट्स वो नेचुरली अपने आप को रिन्यू कर लेता है, रिन्यू भी हो जाता है. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो रहा है कि लैंड को हम रिन्यू होने का टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है? वो यार कंटिन्यूअसली डिग्रेडिंग लैंड,
ठीक है, वी आर कॉन्टिन्यूसली डिग्रेडिंग लैंड. हमने ओवरग्रेजिंग ज्यादा ग्रेज करवा रहे हैं हम, क्योंकि पास्चर्स कम है, तो that has led to land degradation. Mining, as I have told you, has led to land degradation. Then deforestation से land degradation कैसे होता है कि जब हम deforestation करते हैं, उस जब trees निकल जाते हैं तो पीछे सॉइल जो है वो सूखी, विंड इरोजन उसमें काफी हो जाता है. ठीक है, पानी से वो पानी सॉइल इरोजन हो जाता है. आपको पता है जो लैंडस्लाइड्स आती हैं वो क्यों आती हैं? क्योंकि लैंडस्लाइड्स उन्हीं पहाड़ों पे आती है जिस पहाड़ों पे वेजिटेशन बहुत कम होती है. वेजिटेशन से क्या होता है कि वो बहुत रूट्स जो है वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, ठीक है, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता है. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ विंड एज वेल एज विद वाटर. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. उसके प्लस हम जो पोल्यूट कर रहे हैं लैंड को, इतनी केमिकल्स जो छोड़ रहे हैं लैंड पे, वो सारे दे आर ऑल कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, राइट? Human activities have not only brought about degradation of land, but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. ठीक है, हमारी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स ज्यादा आ रहे हैं. ठीक है, हमारी वजह से ज्यादा आ रहे हैं. We are the cause. ठीक है, हम कह रहे हैं कि नेचुरल कैलामिटीज तो अर्थक्वेक में हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्लड्स हमारी वजह से आ रहे हैं ज्यादा. ठीक है, क्योंकि हमने हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो पूरा क्लाइमेट चेंज आ रहा है हमारे पूरे अर्थ पे, उससे जो नेचुरल जो साइकिल है, जो नेचुरल साइकिल है, उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, तो नेचुरल कैलामिटीज ज्यादा आ रही है, राइट? तो हमारा जितना भी टोटल लैंड एरिया है, उसमें 130 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड है. 130 हेक्टेयर्स जो है, 130 मिलियन हेक्टेयर्स हमारा डिग्रेडेड लैंड है. ठीक है, उसमें से 28% इज फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड, then 56 is water eroded area, and the rest is affected by saline and alkaline deposit. तो हमने ये देखा है कि हमारा लैंड डिग्रेडेड लैंड जो 130 मिलियन हेक्टेयर्स है, वो कैसे डिग्रेड कैसे है. फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, वाटर इरोडेड एरिया है. वाटर इरोडेड एरिया मींस फ्लड्स से जो सॉइल इरोड होता रहता है, वो वहां पर ना कोई कल्टीवेशन हो पाती है, ना ही कोई आकृति, आपकी बुक में ये डाटा नहीं दिया हुआ है. दिस डाटा इज नॉट गिवन इन योर बुक. कैन यू सी दिस? Which book? Good question, Akhil. Your textbook, which book are we talking about? Yes, this is NCERT book. This is what you have to. So if this data is missing from your book, I'll send a picture of this. Akriti, I'll send a picture of this and in your group, right? And you can go through it. उसके बाद land degradation के हमने reasons भी अभी पढ़ लिए. ठीक है, उसके बाद how can we solve the problems of land degradation? लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है कि हम लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोक सकते हैं? थ्रू एफॉरेस्टेशन, थ्रू प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, राइट? गुड Sabhita, very good Akhil. Afforestation, good Akriti. Afforestation is the first way through which we can actually stop we can actually stop the land degradation, right? उसके अलावा अब एफॉरेस्टेशन ट्रीज उगाने के अलावा हम लोग अपने हमारे पास और फार्मिंग के बहुत ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन रोक सकते हैं, जैसे प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्स. उससे क्या होता है कि विंड इरोजन कम होता है. शेल्टर बेल्स क्या है, कैसे होती हैं, मैं अभी आपके साथ इमेज शेयर करूंगी, उससे आपकी शेल्टर बेल्स का आपको पता चल जाएगा. हाउ शेल्टर बेड,
Yes, proper management of waste disposal. Very good, Kritika. Belt, shelter belt. Akhil, it is shelter belt. Shelter belts क्या होती हैं actually? कि जब आपके खेत, suppose these are the various farms, इसमें फसल उगी हुई है, इनमें फसलें उगी हुई हैं, तो इनके जो बॉर्डर्स होते हैं ना, आपने देखे खेत देखे कभी? उनके हर खेतों के साइड पे छोटे छोटे मिट्टी के उन्होंने बनाए होते हैं बॉर्डर्स, खेतों के बॉर्डर्स, ठीक है? उन बॉर्डर्स पे अगर हम ट्रीज लगा दें तो क्या होता है? उनको कहते हैं शेल्टर बेल्ट। अगर हम उनके बॉर्डर्स पे ट्रीज लगा देते हैं तो जब हवाएं चलती हैं, बहुत जोर से विंड चलती है, तो इन खेतों के बीच में जो क्रॉप लगा होता है उनको हवाएं जोर से खराब नहीं कर सकती। जब तूफान आते हैं, आपने देखा होगा फसलें बिल्कुल लेट जाती हैं, वो अगर वहां पे अगर हम उनके बॉर्डर्स पे ट्रीज लगा दें ना, शेल्टर बेल्ट्स, उससे ट्रीज भी ज्यादा होंगे, ठीक है? फॉरेस्ट कवर ज्यादा हो जाएगा। यस, तो वो फॉरेस्ट, ये जो जिनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बन्नी बोलते हैं, बन्नियां होती हैं, छोटी छोटी बॉर्डर्स होते हैं, और उन पे हम अगर ट्रीज लगा देते हैं, उससे हमें मल्टीपल जो है वो मेरिट्स और प्रॉफिट्स हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दे कैन स्टॉप द स्पीड ऑफ विंड, ठीक है? रास्ते में अगर पेड़ लगे हैं तो विंड जो है वो इतनी जोर से थपेड़े नहीं मारेगी हमारे क्रॉप्स को, और हमारे क्रॉप्स गिरने से बच जाएंगे, डिस्ट्रॉय होने से बचेंगे। बहुत तूफान हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और हमारा मेन रीजन ये है कि हम वी पीपल हैव नॉट ग्रोन शेल्टर बेल्ट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ आवर फील्ड्स, राइट? तो फील्ड हमारे पास ऐसे होते हैं, जितनी हवा, उसके बाद जब क्रॉप हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये पूरे यहाँ पर सूखी मिट्टी बच जाती है और हवा से बहुत ज्यादा इरोजन हो जाता है। नो अखिल, दिस इज नो, लेट मी टेल यू, जो हमारे नेचुरल ट्रीज होते हैं ना, हम यहाँ पे एक्सोटिक प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं। जो नेचुरल ट्रीज, जो हमारे यहाँ के लोकल ट्रीज जो होते हैं ना, जो किसी भी लैंड के लोकल ट्रीज होते हैं, लोकल वेजिटेशन होती है, वो रादर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं लेती है। कितने, अगर एक खेत की साइड पे 5 ट्रीज लग जाते हैं, हर एक इतने बड़े खेत के कितने बड़े बड़े होते हैं ट्रीज, ऑल्दो इट इज गोइंग टू टेक 4-5 years फॉर द ट्रीज टू ग्रो अप, 5-6 साल बाद तो कम से कम हमारे खेत ठीक होंगे, सॉइल इरोजन, विंड इरोजन खत्म होगा, ठीक है? तो शेल्टर बेल्ट्स प्लांट करना इज अ वेरी वेरी गुड यू नो वे थ्रू व्हिच वी कैन stop land degradation and we can also contribute into afforestation. Afforestation भी होगी, आगे पीछे क्लाइमेट भी अच्छा रहेगा, एयर प्यूरिफाइड रहेगी, बारिश अच्छी होगी उन जगहों पे जहां पे ज्यादा ट्रीज होते हैं, वहां पे बारिश भी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, शेल्टर बेल्ट से विंड इरोजन से हम बच पाएंगे, ठीक है? तो क्रॉप्स हमारे बच पाएंगे, ठीक है? So these are the ways through which we can stop land degradation. Okay, now comes the next topic, soil as a resource. बेटा I am seeing कि ये क्लास जितनी इंटरेस्टिंग होती थी ना पहले, उतने ज्यादा आपके क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ द वे जा रहे हैं। हम अगर कहते हैं कि हमें अपने घरों की दीवारें मजबूत बनानी है ताकि चोर या तूफान से वो टूटे ना, तो आप बोलेंगे कि मैम दरवाजा कैसे, फिर हम अंदर कैसे जाएंगे घर के? अरे अंदर जाने के लिए एक जगह पे तो वुडन दरवाजा लगाना पड़ता है ना, जहां से हम अंदर जाते हैं दीवार के। उसी तरह ट्रैक्टर अगर लाना है अंदर, उसके लिए 2-3 थोड़ी 15-20 फुट की जगह छोड़ देंगे, ठीक है? बाकी खेत, बाकी जगह पे तो ट्रीज लगा सकते हैं हम। बेटा ये जो क्वेश्चन पूछते हो ना, पहले सोचा करो कि ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम खुद सोच सकते हैं क्या? अपने ब्रेन को भी थोड़ी एक्सरसाइज करवाया करो। ट्रैक्टर जाने के लिए वो जगह छोड़ सकते हैं आराम से, जितनी भी जगह उन्होंने छोड़नी है। ओके, now the next topic is soil as a resource. Now we have, सबसे पहले हमें देखना है, okay, I'll not now draw on the board but I'll share a picture with you where
We have different layers of soil. सबको पता है top layer, parent rock, substratum, सबको पता है ना layers of soil. But normally farmers don't bring it in practice because there are many ways through. We are going to discuss one by one. Shelter belts. This is terrace farming, shelter belts, आपके contour plowing, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे आपकी क्लास में. I'm going to share the pictures with you और फिर हम एक एक करके आपके सारे डाउट्स जो हैं उसी में क्लियर करेंगे. Right? So let us start. सबसे पहले हमारा I'm going to share a picture with you of the different layers of soil. ये जो layers of soil की picture है, this you have been doing since I think 5th or 6th class. So the topmost layer of the soil is known as topsoil. Can you all see this picture now here? The topmost layer of the soil is known as topsoil. Topsoil जो होती है वो उसमें क्या होता है कि ज्यादातर प्लांट्स हम और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसी लेयर में होते हैं. ठीक है, ह्यूमस प्रेजेंट होती है इस लेयर में. यू ऑल नो व्हाट ह्यूमस इज. ह्यूमस इज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर डिकम्पोजिंग. ठीक है, तो उस ह्यूमस की वजह से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बहुत सारे सॉइल को. तो टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी सब सॉइल. सब सॉइल में हमारे वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट आर प्रेजेंट. ठीक है, सब सॉइल में हमारे वेदर्ड रॉक्स, सैंड और सिल्ट होती है. उसके बाद आता है सबस्ट्रेटम और वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल. पेरेंट रॉक मींस ये सॉइल जिस पेरेंट रॉक पे बनी हुई है, जैसे इग्नियस. अगर हम डेक्कन प्लेटू में चले जाएं तो पेरेंट रॉक मटेरियल वहां पे क्या है. अगर हम अपने पेनिनसुलर प्लेटू में चले जाएं तो पेरेंट रॉक मटेरियल वहां पर क्या है, कौन सी रॉक है जो वहां पे मिलती है. इग्नियस. वेरी गुड अर्शिया. सो इग्नियस रॉक, कृतिका गुड बच्चे, नीलांशु, इग्नियस रॉक्स मिलती है हमें वहां. तो पेरेंट रॉक वहां पे इग्नियस है. तो पेरेंट रॉक पे डिपेंडेंट होता है कि हमारी ऊपर वाली सॉइल का कलर क्या है. ठीक है, और सबसे नीचे हमारा बेड रॉक होता है जिसे अनवेदर्ड पेरेंट रॉक कहते हैं. अनवेदर्ड पेरेंट रॉक. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज दी. आपको ये सॉइल का ये जो डायग्राम है ये लर्न करनी है. इससे ज्यादा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे. ठीक है, सो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सॉइल की क्या बेनिफिट्स है वो तो हमें पता ही है. ठीक है, इस पे प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ बोथ आर डिपेंडेंट. प्लांट्स को उगने की जगह मिलती है, ग्रोथ की जगह मिलती है, और एनिमल्स बहुत सारे या तो सॉइल के बीच में रहते हैं या सॉइल के ऊपर रहते हैं. ठीक है, सॉइल इज इटसेल्फ अ लिविंग सिस्टम. ठीक है, आपको पता है कि जो सॉइल कवर है वो मिलियंस, इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एयर टू फॉर्म a 1 centimeter of layer of soil. ठीक है, और देन रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन. बेटा सोशल स्टडीज मॉड्यूल मैं आपका बना रही हूँ अर्शिया. आई एम इनटू इट. प्रोबेबली संडे तक मैं डिपॉजिट करा दूंगी वो, और इट विल बी अवेलेबल टू यू. राइट, सोशल स्टडीज मॉड्यूल भी मिल जाएगा आपको. ओके, सो all these factors, the parent rock or bedrock, the climate, vegetation, they all are important factors in the formation of soil, right? And many chemical and organic changes take place in the soil, right? And on the basis of all these things, we have classified our soil into various forms. I'll just share
another photograph with you, the various types of soils which are present in India or which are found in India, right? तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हमारा जो सॉइल है उसके this this map is also available in your book, पेज नंबर 9 पे है ये शायद मैप आपकी बुक में। अब कौन कौन से अलग अलग तरह के सॉइल्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कैन यू ऑल सी दिस ग्रीन पार्ट हियर, दिस ग्रीन पार्ट एंड a bit of it this in सिक्किम, और यहाँ पर ऊपर अरुणाचल प्रदेश में ये सारी जगह आपको याद होगी, ये हिमालयन माउंटेन्स की जगह है, ठीक है? और हिमालयन माउंटेन्स है, यहाँ पे माउंटेन सॉइल मिलता है, मतलब ये सारा माउंटेन एरिया है। सो दिस ग्रीन पार्ट इज नोन एज फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है? ये फर्स्ट वाला हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, जो ये सारी चीजें आपने 9th में पढ़ी है, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में भी पढ़ा है ना, तो नॉर्दर्न प्लेन्स जहां जहां पर होंगे वहां पर कौन सा सॉइल होगा? वहां पर एलुवियल सॉइल होगा। नाउ लुक एट दिस येलो लाइन व्हिच आई एम ड्राइंग, दिस पार्ट एंड समवट इन असम। असम में एलुवियल सॉइल कौन सी रिवर लाई है? असम में एलुवियल सॉइल कौन सी रिवर लाई है बेटा? Brahmaputra. Very good, Arshia. I really like the way you are so spontaneous in answering. Very good, Akriti. Akul, Dihang or Dibang. Yes, Brahmaputra we can say. तो ब्रह्मपुत्र से असम में alluvial soil बना है, और हमारे पूरे northern plains में जो है these soils have been brought by the Ganga and Indus. बेटा soil का color अखिल आप पूछ रहे हो, अखिल alluvial normally all the soils are brown in color. फॉरेस्ट सॉइल आपका मतलब है कि फॉरेस्ट सॉइल जो माउंटेन सॉइल ग्रीन दिखाया हुआ है वो ग्रीन कलर का सॉइल होगा? नहीं, इट इज ऑल्सो ऑफ ब्राउन कलर। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो ऑफ ब्राउन कलर, ठीक है? लेकिन हमारा जो ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं ना, कलर से हमने बनाया हुआ है ब्लैक और रेड। रेड सॉइल इसलिए हम कहते हैं, हालांकि वो भी ब्राउन है, ठीक है? आप ध्यान से सुनिए, रेड का कलर उसका थोड़ा रस्टी सा कलर है, क्योंकि उसमें आयरन ज्यादा है। आपको पता है आयरन व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स रस्ट। तो जैसे ही वो ये जो सॉइल कवर है जहां पे रेड सॉइल है, वहां पर उस सॉइल में आयरन ज्यादा है, आयरन डिपॉजिट, तभी तो आयरन माइंस भी है ना इन जगहों पे कितनी सारी, ठीक है? नो, मार्स इज नॉट रेड बिकॉज ऑफ दिस, नो दिस इज रॉन्ग बच्चे। मार्स की सॉइल रेड इज इट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। मार्स में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वो रेड कैसे हो सकती है? ये है ऑक्सीडेशन ऑफ सॉइल। आपने ये केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री में कि जब it might be having iron deposits, but I don't know much about Mars, but I definitely know one thing about a red soil, that there is more of iron present here, and when iron reacts with yes, very good, rusting कहते हैं उसे, reacts with oxygen, it forms an orangish brown color, तो उससे वो रेड कलर आ जाता है उसका, ठीक है? तो हमारा ये एलुवियल सॉइल है यहाँ पे। उसके बाद ये एरिया हमारा, दिस एरिया जो मैं ब्लू मार्क कर रही हूँ, दिस इज ब्लैक सॉइल एरिया, ठीक है? इसका पेरेंट बेड रॉक जो है वो इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक्स ब्लैक एसेज बहुत ब्लैक कलर का नहीं है, लेकिन डार्क ब्राउन कलर है इनका, बहुत ज्यादा डार्क ब्लैकिश रखता है, ठीक है? और यहाँ पर हमारा सैंडी सॉइल है, ठीक है? एरिड सॉइल जिसे हम कहते हैं, एरिड सॉइल, ठीक है? और ये सारा हमारा रेड सॉइल। और ये छोटे छोटे जो जगहें हैं, ये जो मैं मार्क करूंगी अभी ब्लैक कलर से, ये वाली जगह, और ये स्कॉलर जो भी है बेटा, स्टॉप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, ये वाला एरिया, ठीक है?
और ये वाला थोड़ा सा एरिया, दिस एरिया इज लेटराइट सॉइल। अब हम इन सारे सॉइल्स की एक एक करके फीचर्स पढ़ेंगे। एरिड सॉइल वो सॉइल हैं जो दे हैव बीन, सबसे पहले एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल ये जो यहाँ पर है इसके फीचर्स पढ़ेंगे। एलुवियल सॉइल होते हैं आर द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन इंडिया। बेटा अभी एलुवियल और क्लेई सॉइल में डिफरेंस है। एलुवियल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। क्लेई सॉइल और एलुवियल सॉइल बहुत अच्छे पोरस होते हैं। यस, एरिड सॉइल सैंड नहीं होती है एज सच, सैंड और सॉइल का मिक्सचर होता है, बहुत सैंडी होती है, ये सैंड बड़ी ज्यादा होती है एरिड सॉइल में, ठीक है। ओके, क्ले होता है, क्ले जो क्ले आप जो खेलते हो क्ले से, वो वाली क्ले की बात नहीं कर रहे हैं। जो नेचुरल क्ले होती है ना, वो इतनी ज्यादा मिट्टी, उसमें जरा सा पानी अगर हम डाल देंगे ना तो वो बिल्कुल पोरस नहीं होती है, बिल्कुल चिकनी सी हो जाती है, आई मीन बड़ी सख्त हो जाती है। तो क्ले भी अच्छी नहीं है। अ प्रॉपर मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड एंड सिल्ट, सिल्ट होती है जो सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, उन सबका अगर अच्छा मिक्सचर होगा तो जो सॉइल होगी वो बहुत फर्टाइल रहेगी। यस, क्ले इज यूज्ड फॉर पॉटरी बेटा। नाउ लिसन, this is the most widely spread soil. Alluvial soil is the most widely and most important soil in India. Entire northern plains are made up of these alluvial soils. They are deposited by the interplay of three river systems, Ganga, Brahmaputra and Indus, right? So they extend from Rajasthan, ये देखो गुजरात में भी है थोड़ी सी, ये देखो क्ले जो हमारी एलुवियल सॉइल है, गुजरात और राजस्थान में भी है थोड़ी सी, ठीक है। गुजरात राजस्थान से लेकर हमारे पूरे सेंट्रल इंडिया को कवर करती हुई, नॉर्दर्न साइड से कवर करती हुई ईस्टर्न पार्ट में असम तक है ये सॉइल, ठीक है। और फिर ये देखिए यहाँ पे हमारे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पर कितनी सारी रिवर्स जो है वो डिपॉजिट करती हैं सॉइल, ठीक है। तो हमारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी बहुत सारी एलुवियल सॉइल है, ठीक है। वहां पर कौन सी रिवर्स डिपॉजिट करती हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। और थोड़ी सी यहाँ पर हमारी एलुवियल सॉइल जो नर्मदा और तापी रिवर लाते हैं वो वेस्टर्न साइड पे है, राइट। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। उसके बाद ये आपको खदर और बंगार के बारे में तो पढ़ा ही होगा। खदर हो गया हमारा न्यू एलुवियल सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल एंड रिन्यूड एवरी ईयर। बंगार हो गया द ओल्ड एलुवियल विच कंटेन्स द कंसिस्टेंट ऑफ कंकर्स। कंकर हो गया, कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, कैल्शियस डिपॉजिट होते हैं। तो बंगार is old alluvial and less fertile. Khadar is new alluvial and more fertile, right? Alluvial soils are very fertile and are they contain proper proportions of potash, phosphoric and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal crops, ठीक है। And these plains are very populated. The soil where alluvial soil are found, these are very populated because lot of crops can be grown in these areas. Next come black soil. Black soil are also known as regur soils, ठीक है। तो या black cotton soil भी इसको कहते हैं, समझ आया? तो these soils, these black soils which are found in this area here, the parent rock material is igneous rock, ठीक है। This rock, this type of soil is found in Deccan Trap. ये region को Deccan Trap region भी कहते हैं और basalt region भी कहते हैं, ठीक है। ये lava flow से जो soils बनी हुई है, igneous soils, उनसे बनता है, ठीक है। They cover plateaus of Maharashtra, Saurashtra,
मालवा मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इसमें अब आपको पता है ब्लैक सॉइल इज वेरी क्लेई सॉइल। बेटा स्टॉप दीज ड्राइंग्स हियर, विल यू? These black soils are very clayey soils, ठीक है, and can hold moisture, ठीक है, and whenever they get wet they get very sticky, ठीक है, और इसीलिए बारिश आने से पहले ही इसको टिल कर लिया जाता है। टिल का मतलब है इन खेतों को जोत लिया जाता है, क्योंकि जैसे ही बारिशें शुरू हो जाती हैं ये इतनी क्लेई और स्टिकी हो जाती है कि इनमें टिलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो प्री मॉनसून के शावर के साथ ही इनको टिल कर दिया जाता है, खेतों को जोत लिया जाता है। और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो जो सॉइल, क्रैक्ड सॉइल जो दिखाते हैं ना कई बार टीवी में, वो ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। तो जैसे ही बहुत गर्मी होती है they develop deep cracks during hot weather season. Then comes the red or yellow soils. ये एरिया जो है वो रेड और येलो सॉइल का एरिया है, दिस हेयर एंड अ बिट ऑफ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। These are also formed on igneous rocks, right, and in the areas of low rainfall, ठीक है। These yellow and red soils are also found in Odisha, Chhattisgarh, and southern part of Ganga plain. These soils develop reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when hydrated. ज्यादातर इनका कलर जो है वो रेड ही रहता है, रस्टिश रेड होता है। रस्ट रेड ऐसा रेड कलर नहीं जो आप पेंटिंग में करते हो, ब्राउनिश रस्ट कलर का होता है, ऑरेंजिश ब्राउन कलर होता है इसका रस्ट कलर सॉइल का। और जब इनके ऊपर बारिश होती है तो ये हल्के से येलोइश कलर के हो जाते हैं। समझ आ गया? Now comes laterite soil. Laterite soil होती है is derived from the word later, which means brick, ठीक है। It is developed in the areas with very high temperature and heavy rainfall. ये areas, Sarabjit Singh, will you stop writing on the screen, please? These areas are the areas of laterite soil. ये छोटे छोटे areas बीच में, ये वो areas हैं जहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। Humus content is very low because the microorganism cannot grow in these hot climate, right? And with adequate fertilizers and manures, these can be crops can be grown here. These soils are found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and are useful for growing tea and coffee. लेटराइट सॉइल में कौन सा क्रॉप होता है? टी और कॉफी, याद रखना ये बात बेटा, ठीक है। और कैशियो नट भी उगाए जाते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में। इस सॉइल में कैशियो नट्स भी उगाए हैं और टी और कॉफी भी उगाया जाता है असम में और यस ईस्टर्न स्टेट्स में। नेक्स्ट कम्स द एरिड सॉइल। एरिड सॉइल आपको पता है कहां पर होती है? ये जो एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ एरिड सॉइल which is red to brown in color. They are very sandy in texture, right? They because of dry climate, high temperature, evaporation is very fast, and humus and moisture is not present in the soil, ठीक है। इस soil में भी कंकर बड़े ज्यादा होते हैं in the low horizons, क्योंकि बहुत ज्यादा evaporation के बाद। वॉलनट्स बेटा आपको पता है माउंटेन सॉइल्स में होते हैं अकुल। Walnuts are found in mountain or forest soils. After proper irrigation, these soils become cultivable. Arid soils को भी irrigation के साथ थोड़ा बहुत cultivation किए जा सकती है। Then comes forest soil.
लास्ट में आता है फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल क्या है? These soils are found in hilly and mountain areas where sufficient forest rain and forest area are available. ठीक है. और the soil is very loamy. Loamy का मतलब होता है mix of sand and clay and humus. ठीक है. Loamy soils होते हैं where there is mixture of sand. ये जो भी है मिस्टर कैप्टन, stop writing on my screen. So these are the different types of soils. हमने अब पढ़ा mountain soils, arid soils, alluvial soils, black soil, red and yellow soil, or laterite soil. These are the different type of soils which are present in India, right? Finally, last topic है आपका soil erosion and soil coarse grained होते हैं बेटा, जो बड़े rough soils होते हैं, जिसमें बहुत दरदरे सॉइल जो जिसे कहते हैं, जिसमें क्ले कम हो. ठीक है. और ग्रेन सॉइल के बहुत मोटे मोटे हो. दे आर कॉल्ड एज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स. ठीक है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन्स व्हिच टेक प्लेस, राइट. वन इज गली इरोजन. गली इरोजन होता है व्हेन, can you see this? This is a picture of gully erosion. ठीक है. Running water cuts through clayey soils and makes deep channels which are called as clay. अब ये जब gully erosion होता है, these areas become wastelands or badlands. इनको badland भी कहते हैं. These are unfit for cultivation. क्योंकि यहाँ पे देखो कितना कितना soil ही पूरा पूरा निकल गया हुआ है. ठीक है. ज्यादातर ये इस तरह के गली इरोजन वाले जो एरिया हैं वो चंबल में मिलते हैं. मध्य प्रदेश में चंबल में ये सॉइल्स जो हैं वो मिलते हैं. ठीक है. दीज आर, मैम हाउ इट हैपन. बेटा बड़ी अच्छी बात है अगर आप ऐसे लिखेंगे, मुझे लिख के बोलेंगे तो आई विल नॉट एक्सेप्ट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me through the chat. Yes Mridula, yes, these lands are of no use. ठीक है. gully means small channels. gully means small channels. channel की तरह बिल्कुल वो drains की तरह छोटी छोटी gully erosion बन जाते हैं. ठीक है. it happens because of water. पानी की वजह से, पानी से ये erosion हो रखी है sand एरियाज की. बीच में जो सॉफ्ट सॉइल था वो निकल गया है, पानी के साथ बह गया है. ठीक है. ये आगे जाके बेटा रिवर पानी के साथ चला जाता है आगे जाके, फिर आगे जाके कहीं पर भी डेल्टा में डिपॉजिट होगा, कहीं पर भी डिपॉजिट होगा. ठीक है. उसके बाद होता है शीट इरोजन. शीट इरोजन होता है जब पूरी लेयर, ऊपर की टॉप लेयर पूरी की पूरी एक साथ इरोड होती है. ठीक है. सॉइल इरोजन, गली इरोजन और शीट इरोजन जो है, दे आर द टू वेज इन विच सॉइल इज इरोडेड. गली इरोजन ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन शीट इरोजन इज अ वेरी कॉमन वे ऑफ सॉइल इरोजन, राइट. We cannot utilize these lands बेटा, तभी तो कहते हैं हमें इरोजन को रोकना है. दिस इज शीट इरोजन. पूरी की पूरी मिट्टी पानी के साथ पूरी की पूरी शीट बह रही है. ठीक है. So these are the two types of ways in which soil is eroded, sheet and gully erosion. And there are various reasons of these erosions. ठीक है. अगर हम इस पे नहीं बेटा, इस एरिया को हम यूज कर सकते हैं जब हम इस इरोजन को रोकेंगे. उस इरोजन को रोकने के लिए we should have ways to stop the erosion. Like we can have contour plowing. कॉन्टूर प्लोइंग होता है जिस तरफ स्लोप है लैंड की उस तरफ प्लो नहीं करना है, उसके परपेंडिकुलर प्लो करना है हमने. ठीक है. दिस इज व्हाट कॉन्टूर प्लोइंग इज. दिस आई एम शोइंग दिस. अगर ये स्लोप है, ऐसे स्लोप है
तो हम ऐसे करके फ्लो करेंगे परपेंडिकुलर। उससे क्या होगा, जब पानी आएगा तो पानी इन कॉन्टूर से टकराएगा और इरोजन नहीं होगी। अगर हम ऐसी स्लोप है और ऐसे ही फ्लो करेंगे फील्ड्स को, तो पानी को तो बहने की ज्यादा जगह मिल जाएगी, जिससे ज्यादा सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, कॉन्टूर फ्लोइंग होता है लैंड के परपेंडिकुलर, स्लोप के परपेंडिकुलर फ्लो करना। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ स्टॉपिंग द soil erosion. The other way of stopping the soil erosion is planting shelter belts. Shelter belt हमने पढ़ लिया कैसे प्लांट करते हैं। उसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है, दिस इज व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, बीच में हमने ग्रास लगाई हुई है और फिर इसमें क्रॉप लगाते हैं, बीच में ग्रास फिर क्रॉप। इससे क्या होता है, ग्रास जो है, छोटे छोटे रूट्स ग्रास के बहुत कस के पकड़ के रखते हैं और सॉइल को और इरोजन नहीं होने देते हैं। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस वेज थ्रू विच the soil erosion can be stopped. Now listen everyone very carefully. See, I'm going to end the class right now because I have some important work to do. So if you have any questions regarding this chapter, because this chapter is complete, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उनको लिख के रख लीजिए और नेक्स्ट क्लास में I'll clear your doubts. टेरेस फार्मिंग भी रहता है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में नाउ डाउट्स क्लियर करेंगे और ज्योग्राफी का ही नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का ही सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, विच इज एग्रीकल्चर। राइट, थैंक यू एवरीवन।